दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में सबसे युवा विधायक होने का गौरव हासिल करने वाले चैतन्य शर्मा ने मंगलवार को 14वीं विधानसभा के दूसरे सत्र से पहले दिन चर्चा में हिस्सा लेते हुए सभी को अपनी वाक्पटुता का दीवाना सा बना दिया। चैतन्य शर्मा विधानसभा में 9 मिनट 45 सेकंड तक बोले और उन्होंने धारा प्रवाह के साथ अंग्रेजी एवं हिंदी में संबोधित किया, जिस पर वरिष्ठ सदस्यों ने तालियां बजाई एवं टेबल थपथपाई। गौर रहे कि विधायक चैतन्य शर्मा ने कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के प्रदेश की वन संपदा को आग, बाढ़ और भूस्खलन से बचाने के बारे में प्रस्ताव के पक्ष में बोलते हुए इसे जिला ऊना विशेषकर गगरेट विधानसभा से जोड़ा और जंगल में आगजनी की घटनाओं को रोकने हेतु आरकेएस की तर्ज पर कमेटी बनाने की मांग रखी, जिसमें डीएफओ लेवल के अधिकारी हर महीने आग से जंगल को सुरक्षित रखने हेतु बैठक कर सकें। साथ ही उपमंडल गगरेट में फायर ब्रिगेड कार्यालय न होने पर चिंता भी व्यक्त की। उन्होंने क्षेत्र में पेड़ों के अवैध कटान का मुद्दा उठाया और पर्यावरण संरक्षण की दुहाई दी। इसके अलावा किसानों को बाढ़, सूखे से बचाने की भी पैरवी की। चैतन्य शर्मा ने इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और गगरेट की जनता का आभार जताया। आप भी देखिए चैतन्य शर्मा का ये अंदाज। Respected Speaker sir, first and foremost I would like to thank you for giving me this opportunity to speak in the August House today. And with your permission, I would also like to take this opportunity to thank the godlike people of Gagret, my parents, and all my well-wishers along with my mentors, because of whom I have been able to reach this house today. This is the first opportunity that has been given to me to speak in the house. I am very gracefully, I am very, very gracious to you. Also, you and I share a coincidence, sir. In the 6th Vidhan Sabha, you were the youngest member of the house, and today, when I have entered this house within the last 3 months, I feel it is the biggest privilege for me, biggest honor for me, that you are sitting on this chair, and under your guidance, under your able leadership, I will get to learn a lot in the next 5 years. I would also like to thank the Honorable Chief Minister, the Honorable Deputy Chief Minister, all the ministers and the members of this house, all the members of this August House. The last 3 months have also been a very enriching experience for me, be it the Secretariat, be it the working of the Vidhan Sabha. And I would like to thank you once again that you have given me an opportunity to speak today. I really appreciate my fellow colleague, senior member, Mr. Indradat Lakhanpal's motion. And coming from District Una, sir, this issue holds a great deal of importance for my district, for my region. As far as forest fires are concerned, as far as the situation of droughts or of floods are concerned, and even landslides are concerned, this is a grave issue that concerns District Una as a whole. सर, हर वर्ष हम देखते हैं हमारे यहाँ पर कि जब भी कभी कोई बाढ़ आती है या कभी अगर हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट फायर लगती है, तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट मशीनरी होती है, जो हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन द गवर्नेंस के सिस्टम होते हैं, दे सीम वेरी वेरी हेल्पलेस. Before becoming a member of this August House, sir, I also had the privilege of representing my own ward in the Jila Parishad of Una. और वहां के सदन में भी सर हमने इस विषय के ऊपर बड़ी बारी चर्चा करी. जैसे अभी मेरे रिस्पेक्टेड कॉलीग्स ने भी पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स इन दिस कंसर्न डिपार्टमेंट के बारे में मुद्दे उठाए. साथ साथ में सर हमें साइंटिफिक वेज पे हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं उसके ऊपर भी विचार विमर्श करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ऑनरेबल स्पीकर सर, if we see statistically, 27.73% of Himachal Pradesh is under forest cover. We have the Shivaliks on one side, we have the Western Himalayas on the other side, we have the Trans-Himalayan region, which gives a very beautiful cover to our state. But it is very unfortunate that at the end of the day, despite having this geographical natural beauty around us, we are not able to utilize the scientific developments that have been taken place over in our country, over in the globe in the last few years, in the last few decades, and utilize them to our benefit. सर, जब तक हम बात करते हैं डॉपलर रेडार्स की, अगर हम अपना कंपैरिजन करें दूसरी स्टेट्स के साथ, द यूजेज ऑफ सच टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो वेरी वेरी लो. आज रूल 130 के अंतर्गत यहां पर यह मुद्दा उठाया गया. मैं एक बारी फिर से
मेरे रिस्पेक्टेड कॉलीग लखनपाल सर का धन्यवाद करता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है सर, एंड आई थिंक दैट वंस वी आर ऑल डन स्पीकिंग ऑन दिस एंड बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू बी पुट टू अ वोट, आई वुड request the Honorable Chief Minister sir also, since the department is under his command, that we at least form an advisory committee on this thing, or one of the departments should be given a directive on this. For example, all the DFOs within all the districts, they should be carrying out regular, either quarterly if not monthly, reviews of their zones. हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा अवैध कटाई होती है सर, साथ साथ में बहुत सारे जो पेड़ हैं जिनकी कटाई नहीं होनी चाहिए उनकी कटाई होती है, जो निर्धारित जो वहां पर क्वांटिफिकेशन करा जाता है उसके आधार पर भी कटाई नहीं करी जाती है। सो एक साइंटिफिक बेस्ड अप्रोच सर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एज आई जस्ट सेड, हमारे जिला परिषद ऊना में भी ये मुद्दा उठाया गया था, वहां पर एक हमने इनिशिएटिव लिया था सर, वेयर वी हैड डायरेक्टेड all the block officers within the DFO who come within the jurisdiction of the DFO to carry out sustained planting activities, जिसका हम उसके बाद quantification analysis करें कि हर सीजन में हर एक ईयर में उसका क्या बेनिफिट हुआ हमारे इकोसिस्टम के विद इन। एंड साथ साथ में सर, बिकॉज आई कम फ्रॉम गगरेट विधानसभा, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस कि हमारे यहाँ पर सर एक जोन पड़ता है सब डिवीजन अम्ब का, तो मेरे यहाँ पर अगर कभी भी कोई आग लगती है, अगर कोई भी एक इमरजेंट सिचुएशन आ जाती है, सो द ब्रिगेड इज कॉल्ड फॉर फ्रॉम द सब डिवीजन ऑफ अम्ब। सो ये भी एक विचार करने वाली चीज है। इसका मैं जो एक फॉर्मल प्रस्ताव है आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी रखना चाहूंगा कि उसका भी जो एक है हमारे सब डिवीजन में जो है उसका प्रावधान करा जाए। जो आज का मुद्दा है सर, वो क्योंकि इट्स ऑन द नेचुरल इकोसिस्टम, बट क्योंकि जब हम फायर की बात करते हैं सर, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस, अभी एक महीना पहले मेरे मुबारकपुर के रीजन में एक लेबर कैंप में आग लग गई थी। उनके जो है झुग्गी झोपड़ी में वहां पर 3 बच्चों की जो है वहां मृत्यु हो गई। दैट वाज आल्सो बिकॉज ऑफ द रीजन क्योंकि हमारे यहाँ पर एक फायर ब्रिगेड की उपलब्धि नहीं है। बट अगेन आई वुड नॉट लाइक टू डाइग्रेस फ्रॉम द इशू बिकॉज वी आर हैविंग अ डिस्कशन ऑन अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। सर, जहां तक बात आती है लैंडस्लाइड्स की, जहां तक बात आती है अर्थक्वेक्स की, वी हैव ऑल सीन द ट्रेजेडी that has taken place in countries such as Turkey and Syria in the last few months. साथ ही साथ सर हमने ये भी देखा है कि अभी जोशीमठ में क्या हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। I would like to laud his effort where he directed the concerned departments to create and prepare a detailed report on landslides and the sinking zones in the state. I think it is also very important that our state government reaches out to the national government because we belong to a seismic zone 5 area, sir. Himachal Pradesh belongs in seismic zone 5 and we don't want to come into a situation like Joshimath. जोशीमठ में भी सर 5 साल पहले किसी ने एनविजन नहीं करा था, वहां पर एनटीपीसी का प्रोजेक्ट था, बहुत सारी बातें हुई बट कोई एक्शन नहीं लिया गया। एंड वी नो एंड वी नो थ्रू द मीडिया आज वहां पर वो किस सिचुएशन में है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम साइंटिफिक डेवलपमेंट्स को सर आगे बढ़ावा दें। मैं अप्रिशिएट करता हूं पॉइंट को कि वी नीड टू स्ट्रक्चर एंड रीस्ट्रक्चर ऑल आर डिपार्टमेंट्स, बट अलॉन्ग विद दैट अ लॉट ऑफ फोकस एंड एम्फेसिस नीड्स टू बी गिवन टू द टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट सर। साथ साथ में सर मेरा मानना है कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ सोसाइटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर इसमें। इफ वी सी एनजीओज दैट आर ऑपरेटिंग इन एवरी ब्लॉक, इन एवरी विधानसभा, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, they should be roped in by the government wherein they can also play a very big role अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, साथ साथ में प्लांटेशन की एक्टिविटीज को आगे बढ़ावा देने के लिए, साथ साथ में सरकार को भी कहीं ना कहीं सचेत करने के लिए। सो जैसे सर हमारे यहाँ पर हेल्थ में रोगी कल्याण समिति होती है, आई थिंक ये ऑगस्ट हाउस इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक चर्चा कर सकता है कि जब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण की, when we think of environmental factors, तो कहीं ना कहीं हम उसको भी मद्देनजर रखते हुए we can come up with a committee जहां पर सर हर एक विधानसभा में भी इसके ऊपर एक वॉचडॉग एसोसिएशन बन सके। साथ ही साथ में सर लास्टली मैं यही कहना चाहूंगा कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बॉट अप एट अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। जो विश्व भर में हो रहा है, जो हमारे देश में भी हो रहा है सर। Only a couple of months ago, the states of Mizoram and Manipur, they also faced an earthquake. अब
वो बोलते हैं सर, जब आपके ऊपर खुद पे बीतती है तभी आपको रियलाइज होता है व्हाट इज द रियलिटी ऑफ समथिंग. सो आई रियली होप कि हिमाचल प्रदेश हमारा जो इतना ब्यूटीफुल राज्य है, लाइक माय कॉलीग ऑनरेबल MLA Mr. Sultanpuri said, we need to conserve that, sir, and we need to take all the steps in the right direction. Once again, I would like to thank the Chief Minister because he has already showed his far-sightedness in this. उन्होंने already जो है अपना इसके ऊपर जो है department को already अपनी तरफ से he has already given the initiative, and I hope that this August House can come together and formulate points on the preservation of our environment in the near future. I would once again like to thank you for giving me this opportunity to speak for the first time today, sir. And I would also like to thank my honorable colleague, Mr. Indradat Lakhanpal, to having raised such an important issue in the House. Thank you, sir.